हेलो एंड वेलकम। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आ गया हूं मैं एक मस्ती भरे एपिसोड के साथ ऑन गस्टो विद जीडी, brought to you by Unified Brains in association with Passion Vista, your very own luxury lifestyle and business channel. Tourism partner गुजरात टूरिज्म। आज होगी बातें पैशन, सक्सेस और इंस्पिरेशन की। तो आइए मिलवाता हूं मैं आपको आज के हमारे पहले गेस्ट के साथ, जिनके नाम का गुजराती फिल्म जगत में डंका बजता है। चीफा के को फाउंडर हेतल ठक्कर। Hi, this is Hetal Thakkar. I'm president of Gujarati Iconic Film Award, and today I'm here on the show called Gusto with GD. I don't have any clue that what will going to happen today, but जो भी होगा बहुत interesting होगा ये पता है, and I know that this will gonna rock today. और उनके साथ आज के हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, उन्होंने आईपीआर जगत में एक नया ही मुकाम हासिल किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर गोपी त्रिवेदी। Hi, this is Gopi Trivedi. And when I got a call from Team Gusto with GD, I was really excited and nervous too. I found that whether I'm a right person to be in this show or not. But when I coordinated and communicated with them, the entire team was so supportive and so explanatory. And the format was found to be so amazing. And I'm really excited. Thank you. और आज की हमारी जो तीसरी शख्सियत है, इनकी स्टोरी बहुतों को इंस्पायर कर सकती हैं, जिनकी जर्नी शुरू हुई 300 रुपए से और आज जो करोड़ों की कंपनी की मालिक हैं। प्लीज वेलकम एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वेरी हार्ड वर्किंग एंड ब्यूटिफुल चीनू काला। Everyone, this is Chinu Kala, founder of Advanced Accessories in this beautiful city of Ahmedabad. You know, when I received this call from this team, Gusto with JD, I was like, what is it all about? How is it going to be? I mean, there's a talk show? Sounded very interesting. And yes, when I talked to them a little more, I was like, oh, this is very exciting. And I said yes for it. And here I am. हम शुरू करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, जहां हम आपके पैशन और आपकी जिंदगी से रूबरू कराएंगे दुनिया को। लेट मी स्टार्ट। गोपी जी, हम आपसे शुरू करते हैं। आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो आज। Thank you. और आपका ये खिलखिलाता चेहरा, क्या राज है इसके पीछे? I'm following my passion. There are two passions parallelly going. First one is science, and that I'm a patent attorney. So I'm dealing with technical inventions and converting into a techno-legal document, and that's what my profession is. And I'm dealing with different subjects of science every day, and that thrills me like anything. And the second passion is yoga, and for last 5 years plus, I'm owning a aerial fitness studio that is Anti-Gravity Studio, and I'm enjoying doing those sessions. So these two passions are, you know. कैसे इतना सब कुछ मैनेज कर लेते हैं आप? I think when you like and you just do it. Is it? Yeah, I think it's that simple. 50 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप लीड कर रहे हैं। एज अ वुमन लीडर, आपको क्या लगता है कि आज हर जगह वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम वुमन लीडरशिप की बात करते हैं। व्हाट आर योर व्यूज एंड ओपिनियन regarding women leadership in today's scenario? Woman generally, I would not be a gender bias, but generally is empathetic and compassionate. So when there is a woman in the organization, there is a kind of a balance. There are dreams, there are targets, there are aspirations, yes. But at the same time, achieving those targets
the process becomes, little softer and doable. So I think in our organization, those balance can be seen, and I always tell my colleagues that kindly enjoy your work. आपका एटीट्यूड किस तरीके का है? जी, दिस आज- इज व्हाट माय क्वेश्चन इज टू हर कि गोपी जी, लोग आपसे ज्यादा ऑफिस में डरते हैं या ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ, मैं भी वही पूछने जा रहा था in I fact. think my colleagues will answer it better, but I'm an approachable person, so they can share their sorrows and happiness also. Even their new haircut can be shared with me. Mhm. But when it comes to work, there's a very strict line that this is to be done, that means this is to be done. And our profession is time bound, deadline bound. Mhm. We are service providers, so we have no option than to execute. सही बात है। मूविंग ऑन, बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन मैं आता हूँ चीनू जी आपके साथ। तो चीनू जी, मुझे आप सबसे पहले बताइए, आप इतना दूर बैंगलोर से आए हैं आज, कैसा लग रहा है हमारे गुजरात में? ओह, बहुत ही अच्छा। और मैं उनको बता चुकी हूँ कि मैं पहले भी रह चुकी हूँ गुजरात में। सो आई स्टेड हियर फॉर अबाउट 6 years. क्या बात है। आई लव एवरीथिंग अबाउट कहाँ, कौन सी सिटी में थे आप? सूरत। सूरत। I love Gujarati food, I love Gujarati culture, I love everything about this. इन योर जर्नी वी हैव सीन दैट आपने रेलवे स्टेशन पे रात बिताई है। बॉम्बे सेंट्रल के रेलवे स्टेशन पे आपने एक रात बिताई, और वहां से आपकी जर्नी के अंदर जो ट्विस्ट आया, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। क्या था ये एपिसोड? कुछ थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। इनफैक्ट आई बिलीव हेतल जी और गोपी जी के True. पेट में भी बटरफ्लाईज हो रहे होंगे इसको जानने के लिए। Absolutely. Yes. So I had a fight with my father, and me and my father both are very headstrong. So जब ये लड़ाई हुई तो डैड ने बोला कि घर से निकल जाओ, and I left home with all ego. I had 300 rupees with me. I had 2 pairs of shalwar kameez, and वो एक प्लास्टिक की थैली में लेकर I left home. काफी आज तक तो मैं बिल्डिंग के नीचे बैठी रही, थोड़ा रोती रही, वो सब चलता रहा। जब जैसे से रात हुई तो लगा अब कहीं तो जाना पड़ेगा, कहीं तो रहना है। और एक कोई चाइल्डहुड मेमोरी थी कि मैं जब कभी बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन गई होंगी तो मैंने देखा था कि वहाँ पर लोग ना ऐसे बैग्स लेके बैठे हैं, लेटे हुए हैं। तो somehow as a 15-year-old मुझे लगा कि शायद वहाँ रह सकते हैं, एंड शायद वो रहने की जगह है। क्या बात है। So with इंटरेस्टिंग। और मैं बस विदाउट टिकट की भी उस समय ना सोचा टिकट लेने की, और ना ही उस समय इतनी अक्ल थी कि आप जाओ पहले टिकट लो। बस ट्रेन में घुसी और बॉम्बे से लास्ट स्टेशन वाज बॉम्बे सेंट्रल, वहाँ उतरी। वहाँ जाकर आई वाज सिटिंग एंड कॉन्टम्पलेटिंग कि शायद यहाँ रह सकते हैं हमेशा के लिए। एंड उस समय जब पहले 2-3 घंटे तो आराम से निकल गए, बैठी रही। जैसे जैसे रात बीती तब पता चला कि नहीं बाबा, ये तो रेलवे स्टेशन है, आपको रहने के लिए तो घर चाहिए होता है और आप स्टेशन पे नहीं रह सकते हो। तो मैंने 2 रात काटी वहाँ पर, एंड दैट वाज द मोस्ट स्कैरी नाइट, वन ऑफ द वर्स्ट नाइट्स, बट ऑल्सो इट टॉट मी अ लॉट। देखिए, जिंदगी इसी तरीके की कुछ रेलगाड़ी है जहाँ हम बहुत कुछ सीखते जाते हैं। तो आई थिंक आपकी भी जर्नी वहीं से शुरू हुई। बिल्कुल। और वहां से जो आप पटरी के ऊपर आए हैं और वो जो ट्रैक पे आपने गाड़ी दौड़ाई है, आई कैन सी योर जर्नी। शी स्टार्टेड फ्रॉम 3500 rupees एंड नाउ टू अ 7500 crores टर्नओवर। थोड़ा सा उसके बारे में जरा बताएंगे, व्हाट वाज दैट? I'll correct you. So we are at about 30 crore and aiming to be 100 crores. Oh my God! Wonderful. नहीं, ये जर्नी की बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन अब आते हैं हम इंटरनेशनल ऑडिटर, ट्रेनर फॉर क्वालिटी हेल्थ सिस्टम, ISO प्रोफेशन, पता नहीं क्या क्या आपने क्या नहीं किया। प्रोड्यूसर भी हैं आप, फिल्में भी करते हैं, आपके अवार्ड फंक्शंस होते हैं। टेल मी समथिंग मोर अबाउट यू हेतल जी। Basically, I'm an international auditor. I do audits and training for various management systems, that is ISO 9000, 14000, 18000, various different standards for quality, health, safety, environment. ये मेरा प्रोफेशन है, जहाँ से मैं काम करता हूँ, मेरा ब्रेड बटर जहाँ से है। लेकिन देखो, अगर आपका पैशन कुछ है तो वो कहीं ना कहीं आपके दिल में थोड़ा थोड़ा जिंदा रहता है। एंड द मोमेंट आई गॉट द चांस, आई हैव डन दिस गुजराती आइकॉनिक फिल्म अवार्ड विच इज कॉल्ड जीफा नाउ। और मैं पक्का गोपी जी से ये पूछना चाहूंगा कि आपको त्रिवेदी होने में कितना गर्व महसूस होता है? बहुत। आपको चीनू होने में कितना गर्व महसूस होता है? बहुत ज्यादा। और आपको गुजराती होने में? बहुज। बहुज। वेरी मच।
मैंने वो जो प्राउड है वो अपने सीने में से बाहर निकाला है बीइंग गुजराती। What is जीफा all about? एंड जीफा की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जीफा इज ऑल अबाउट गुजराती सिनेमा, गुजराती कल्चर, गुजराती पीपल, गुजराती साहित्य, गुजराती कल्चर, गुजराती आइकॉनिक फिल्म अवार्ड। एक्चुअली गुजराती फिल्में तो बहुत बन रही है, बनती थी, और 1932 से जब पहली गुजराती फिल्म बनी वहां से गुजराती सिनेमा शुरू हुआ है। एंड गुजराती सिनेमा हैज अ बिग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। बट बॉलीवुड बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे अलग अलग रीजनल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इट वॉज अ मीटिंग विद अरविंद, माई डियर फ्रेंड, एंड ही टोल्ड मी दैट लेट अस डू समथिंग फॉर गुजराती सिनेमा एंड वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग लाइक अ फिल्म अवार्ड। तो हमने 1-1.5 साल तकरीबन इसके लिए रिसर्च किया कि गुजराती फिल्मों के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। एंड वी कम टू नो अबाउट कि हाँ ये एक वैक्यूम है एंड वी कैन डू एंड वी कैन अप्रिशिएट द पीपल हु इज वर्किंग बिहाइंड द सीन, हु इज वर्किंग फॉर द सीन। तो शुरू किया हमने गुजराती आइकॉनिक फिल्म अवार्ड 2016 में। बहुत बढ़िया। तो कैसी रही अभी तक की जर्नी आपकी? यस, इट इज़ वेरी गुड। मैं आपको बताऊं, आज इंडिया में सबसे बड़ा गुजराती फिल्म अवार्ड जीफा हो रहा है। पिछले 5 साल से हम कर रहे हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि हमने 2017 में जीफा एक स्टेडियम में किया था, दैट इज इका स्टेडियम। एंड गुजराती एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए 25,000 लोग कभी जमा हुए हो ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है। देखो, शाहरुख खान या सलमान खान अगर यहाँ पे आते हैं और 10-20 हजार लोग जमा हो जाएंगे, वो नेचुरल, क्योंकि दे आर बिग सेलिब्रिटीज, सही बात। दे आर नेशनल फेस। लेकिन मैं चाहता हूँ जो गुजराती सिनेमा के कलाकार है, जो हमारे फेसेस है, जो हमारे अपने हैं, वो भी उस तरह से बड़े सेलिब्रिटीज बने। और जीफा में आपको पता ही है, यू आर विटनेस ऑफ दैट, कि 25,000 वाज द गैदरिंग फॉर जीफा इन 2017। ऑन दिस नोट एक सवाल आपके लिए और, मुझे ऐसा महसूस होता है कि गुजरात में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी जीफा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और गुजरात टूरिज्म आपके पार्टनर भी रहे हैं। इस जर्नी को लेकर के आपने गुजरात में टूरिज्म सेक्टर के अंदर किस तरीके से नई एक उमंग, नई एक उत्साह पैदा करी? थोड़ा सा थ्रो सम लाइट ऑन इट। सी, एज फार एज कंसर्न विद गुजरात टूरिज्म, दे आर आवर पार्टनर्स सिंस लॉन्ग टाइम। डे 1 से वो हमारे साथ है। और गुजरात टूरिज्म का एक पोर्शन है, वर्टिकल है, दैट इज कॉल्ड सिनेमैटिक टूरिज्म। तो उसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है। हमने वाइब्रेंट गुजरात में उनके साथ MOU भी साइन किया हुआ है। और आजकल तो अगर आप देखेंगे तो देयर आर गुजराती सेलिब्रिटीज एंड गुजराती पीपल, दे आर पार्ट ऑफ दिस गुजरात टूरिज्म। बहुत सारे एपिसोड, बहुत सारे शोज गुजरात टूरिज्म के डिफरेंट प्लेसेस को लेके कलाकार कर ही रहे हैं। अहमदाबाद इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी नाउ। तो आज इस बार अभी कोरोना और ये सब महामारी जो हुई थी जी, बट आप देखेंगे तो कच्छ का जो रणोत्सव हुआ, व्हाइट डेजर्ट, जी, दैट वाज द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ गुजरात। कि वहां पर इतने कोरोना और इतनी पाबंदियों के बाद भी हाईएस्ट ट्रैफिक था। तो गुजरात टूरिज्म इज डूइंग वेल ऑल अक्रॉस द गुजरात एंड वी आर ग्लैड दैट वी आर पार्ट ऑफ इट। क्या बात है। बहुत ही मजा आ रहा है आप लोगों से बात करने का। बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन आते हैं गोपी जी आपकी तरफ। आपने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया है। What was that for? The world record was for filing 162 patent applications in a single day. क्या बात है। Wow. And nobody in the world has ever attempted even closer number to it. And we could do it in 2018. IPR की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये सब्जेक्ट आम आदमी का सब्जेक्ट नहीं होता। लोगों को आज भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम। सिंस आप हमारे बीच मौजूद हैं, कुछ बातचीत हो जाए IPR और IPR के रिलेटेड, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उसे आप वाकिफ करा पाएं, उन्हें आप बता पाएं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर अबाउट दोज क्रिएटर्स, लाइक वी जस्ट हर्ड अबाउट चीनू काला स्टोरी एंड हर ब्रांड. So her brand is nothing else but a trademark, right? Whatever contents are generated, this fall under copyright. So some inventions based into some scientific principle, when they are created, the patent takes birth, and any beautiful and aesthetic design comes up by a creator, then design registration is something which is advisable. So this is, in nutshell, these is intellectual property rights.
And I urge viewers that, you know, it's all about you, it's all about the creators. People like us are there to protect them. But the creation part comes from the industry, from an individual, from anybody. Absolutely. And in fact, you need not to be even learned for that. Let's say those beautiful handicraft items can also be protected under geographical indications, just like Patan Patora or Bandhani or even Bhavnagari Gathia for that matter. Right? So there is no bar. So they are all interconnected and it's a vicious circle. It's a positive circle, I तो would say. कहने वाली बात तो ये है कि हम एंटरप्रेन्योर्स तो अगर IPR में जाएंगे तो हमारा तो जेब हमेशा खाली ही रहेगा, बिकॉज एक चीज के अंदर से दूसरी चीज और दूसरी चीज में से तीसरी चीज. बट जीडी में यहाँ पे एक सवाल, इफ यू परमिट मी, अलाउ मी, आई वुड हैव अ क्वेश्चन फॉर गोपी जी. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि IPR is more or less connected with the entertainment industries, and as far as I am with the entertainment industry, जी, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इस पर भी कुछ लाइट दे यहाँ पर कि how IPR is connected with entertainment industry and music industries. So music composing is protected under copyright, and there is a bundle of rights called composer rights. Okay. Right? Then there is cinematographic rights. Right. There are rights with producer. There are rights with other creators. absolutely. So while any such creation takes place, so we really sit down and, you know, discuss out the rights and try to provide the balance, of course, under the law. They are all ये- relevant questions. ये जो IPR की बात है, या उसका कुछ एक लिमिट पीरियड होता है कि यहाँ तक ही आपके राइट्स है उस पर? That's a wonderful question. Now, every intellectual property right has a different lifespan. Okay. For example, the trademark is eternal. The older is mightier. You need to renew it as True. per the law. So trademark has an eternal lifetime. When I come to patents, it has 20 years of lifetime because technology advancement should be possessed for a certain period So they can of time. continue and they can renew. Then it goes in public domain, so the entire world can use it. Okay. That's the philosophy behind patent. Good. When it comes to design, it has 10 years plus 5 years of extended period lifetime. And when it comes to copyright, it has 2 different slots, and that would be too long to define. Okay. But I would say 60 years and then the lifetime of the Oh. author. And otherwise 25 years and lifetime of the Oh, author. that's it. Thank you so much, I'm Gopi ji. getting inspired to get some of my designs patent from her. You know, because we देखिए तो create यही so many है, designs. बातचीत में दोस्ती हो गई और दोस्ती में से बिजनेस निकलता है. I know. Because we create so many designs, and the biggest fear to any fashion industry You're is the welcome. copy, you know. And I'm going to get in touch with you. For sure, for sure. I'll ask for the royalties. Okay. तो चीनू जी, अगला सवाल आपके लिए. चीनू, आज आप जिस मुकाम पे हैं, टाइटल्ड एज अ फैशन ज्वेलरी क्वीन, काफी लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि आपकी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई थी, एंड लाइफ टॉट यू मोर लेसन्स देन स्कूल कोड. क्या आपके विचार हैं इसके बारे में? feels nice because ऐसा लग रहा है कि जो सपने देखे थे वो कहीं थोड़े बहुत पूरे होते हुए दिख रहे हैं. But yes, it's been a journey for me, you know, because I did not get a chance to complete my education. But then life is the biggest teacher. So at this age, I have 24 years of experience. My God. And this 24 years of experience may also grassroots experience. मैं तो है. सोच रहा था ये आपकी उम्र होगी. अगर आपका एक्सपीरियंस है तो अब एज का तो अंदाजा ही नहीं लग रहा है. If you want to give one line to Chinu Kala, what would that be? One line. I am a true dreamer. And I'm someone who doesn't just dream, but also ready to put in whatever it takes To achieve that. I Right. haven't taken off for last at least 5 years. I don't even get Sundays off. So that's the way I work. So how do you manage your business, family, personal life? How is that going on? All timed. So I have a fixed time. I spend not too much time, but I spend quality time with my daughter. I time it. So Sundays, half a day is with her, and after that I get to work. But it's all timed. गोपी जी, अगर हम बात करें आपकी कंपनी की, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 50 साल हो गए हैं, आपकी कंपनी को 50 साल हो गए हैं, और इस 50 सालों में आपकी कंपनी ने खूब सारे आपने अवार्ड्स जीते हैं.
तो ये कुछ अवार्ड्स का जो सिलसिला है ये ऐसा है कि ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है, तो क्या है ये सिलसिला? अभी बात ऐसी है कि it's like 50 years of journey so far, and of course it shall be continued with the same passion and the same integrity. So awards have been a byproduct. We respect and love them. The most precious to us is a legal accolade saying that various judgments from our firm have been marked as landmark judgments, right? And then those judgments have been referred by various courts across India. And so that's something which is very remarkable. सही बात है. Right. And the list of awards is a little long, so I might have to use, No mobile worries. to. जहाँ अवार्ड्स की बात करी है, lovely. हेतल जी, how did you and अरविंद जी became so good friends? आपने बात करी थी अरविंद जी और आप मुलाकात आपने ली, आपने जीफा का शुरुआत करी, लेकिन असलियत में ये जर्नी जहाँ अरविंद वेगड़ा जी की हम बात कर रहे हैं, तो हाउ डिड एक्चुअली अरविंद वेगड़ा एंड यू बिकेम फ्रेंड्स? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं और अरविंद कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और हमारी जो कॉलेज थी वहाँ से एक ड्रामा कंपटीशन हुआ था जिसमें हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था. वहाँ से हमने जर्नी शुरू की और 1993 में जब कॉलेज का लास्ट ईयर था तब मेरा खुद का एक ऑर्केस्ट्रा था पैशन. शुरुआत तो वहीं से थी, दिल में तो कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट था, तो मैंने अपना 1 साल के लिए था वो एक ऑर्केस्ट्रा भी किया था जिसमें अरविंद वाज द सिंगर. अरविंद ने फर्स्ट टाइम वहां से गाना शुरू किया था. क्या बात है, मतलब आप उनको तब से जानते हैं जब उनका सेलिब्रिटी क्वोशंट था ही नहीं? हाँ बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल नॉर्मल थे और एज अ ऑर्केस्ट्रा नवरात्रि ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट किया था. फिर वो अपने काम में बिजी हो गया, मैं मेरे काम में बिजी हो गया. एंड आई थैंक्स टू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के ग्रुप में 2015 में हम लोग वापस मिले. क्या बात. इट वाज अ गैप ऑफ मोर देन 15 इयर्स, 20 इयर्स, और उसके बाद वापस मुलाकात हुई एंड फिर से वही दोस्ती, फिर से वही काम. और उसके बाद में आपने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा? पीछे मुड़ के नहीं देखा, अभी पीछे मुड़ के देखने का सवाल ही नहीं है. और आज आप अरविंद जी के साथ में काफी कुछ कर रहे हैं, टुगेदर यू आर देयर. ओके, वेरी नाइस. इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. अभी लॉकडाउन के दौरान आई गेस आपने कुछ वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल शो ऑर्गेनाइज कराया था. अब ये वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल शो ऑर्गेनाइज कराते वक्त आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ? लॉकडाउन में मैं आपको बताऊं, हमने 3 एक्टिविटीज ऐसी की जो नोटेड हुई, जिसमें पहली एक्टिविटी जो आपके लिस्ट में नहीं है, हम लोगों ने एक गाना बनाया, मारो देश खिल से गुजरात खिल से, दैट इज अ स्पेसिफिक सॉन्ग फॉर द कोरोना एंड दैट वाज अप्रिशिएटेड एंड ट्वीटेड बाय आवर पीएम नरेंद्र मोदी आल्सो. सो दैट वाज द प्राइड मोमेंट फॉर गुजरात आल्सो. वो एक गाना था. उसके बाद हमने एक वर्चुअल शो किया, दैट इज गुजराती आइकॉनिक फिल्म फेस्टिवल, दैट इज द टोरंटो गुजराती आइकॉनिक फिल्म फेस्टिवल. एक्चुअली ये फिल्म फेस्टिवल हम कनाडा में करने वाले थे, लेकिन ड्यू टू कोरोना एंड दिस पैंडेमिक सिचुएशंस वी वर अनएबल टू डू दैट. तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे हम लोगों तक पहुंचाए. द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इज कि गुजराती कल्चर, गुजराती सिनेमा को हम वर्ल्ड तक पहुंचाए. और हमने सितंबर अक्टूबर में एक वर्चुअल शो किया, दैट वाज अप्रिशिएटेड बाय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आल्सो. क्या बात है. और उसको अवार्ड भी उसमें दिया गया है कि दैट इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट वर्चुअल अवार्ड शो फॉर द गुजराती सिनेमा. So that got recorded in the World Book of Records. Yes. And lastly, we have done GIFA 2020 without audience. That was again a virtual show of this year, जिसमें सारे सेलिब्रिटी थे, परफॉर्मेंसेस थे, सब कुछ था, सिर्फ ऑडियंस नहीं था. क्या बात है. तो लॉकडाउन ने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया. For example, if my son asked me one day, why do we have to study? And the natural answer came to me, and I still remember, is Vidya dadati vinayam, vinayam dadati patratam, patratam dhanam apnoti, dhanat dharmam tatha sukham. So, I mean, this came so naturally, and it just imbibed in me at every phase of life. So हम तो बचपन में यही करते थे, ती था अंति सी था आमी आमा आवा, उसके अलावा हमको कुछ नहीं आया. well, this is But very nice, good to see that अभी भी संस्कृत के श्लोक और उसका उच्चारण, उसका perfection, very nice, so inspiring. Chinu, there is this beautiful Mithibai College का incident in your life. So Mithibai College is
obviously one of the best colleges in Mumbai. Even the people who get to go to colleges, for them also it's like the best college. You know, everyone goes there, sees it. Most of the celebrities go there. So at my younger age, when I was struggling and life was not so good, एक फ्रेंड मुझे मिथिबाई कॉलेज ले गई ये बोलकर कि आई शो यू कि कॉलेज कैसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला तो वैसे ही बुरा लग रहा था। उसके ऊपर वो मुझे मिथिबाई कॉलेज ले गई। तो जब मैं मिथिबाई कॉलेज गई तो मेरे हाथ में एक बैग था जिसमें 4 फ्लोर क्लीनर, नाइफ, जो भी मैं चीज़ें डोर टू डोर बेचती थी वो वाली चीज़ें थी, और एक चप्पल पहनी हुई थी, और लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी उस समय। बट जब मैं वहाँ पहुँची, oh my God, everyone looked amazing, everyone looked beautiful. मुझे लगा ये अलग दुनिया है, ये अलग लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं, और मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, या मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। उस दिन पता नहीं, बिकॉज ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा था बिकॉज मोस्ट ऑफ द किड्स जो वहाँ थे वो मेरी एज के थे या मेरे से थोड़े से बड़े छोटे थे। तो बहुत बुरा लग रहा था, और मैं मिथिबाई कॉलेज के बाहर बैठकर काफ़ी रोई 2-3 घंटा, बट रोने के अलावा कुछ कर नहीं पाई, तो चली गई वापस, फिर से काम करना शुरू किया, और वो जर्नी चलती रही। जस्ट 4 महीने पहले मुझे मिथिबाई कॉलेज से ही कॉल आया to become a guest speaker there. Wow, phenomenal. So now this is what is called real passion. Yeah. कि अगर आप ड्रीम बना लें और अगर आप मन में ठान लें तो you can achieve that. Am I right? True. मैंने कहा कि किसी भी कॉलेज से कॉल आना obviously feels nice, but उस कॉलेज से कॉल आया जिसके बाहर मैं बैठ के रो रही थी और सोच रही थी कि ये लोग अलग हैं, ये दुनिया अलग है, और मेरी लाइफ इतनी खराब क्यों है। वो it was a beautiful feeling. I got tears in my eyes that day. इस कॉल के बाद। Of course. मैंने सुना है गोपी जी कि आप जब माई जोन में जाती हैं तो वहाँ क्यूट लिटिल मोड में हो जाती हैं, वो क्या है ये आपका माई जोन कौन सा जोन है ये? My zone is my meditation. Or many a times when I do things so passionately, even reading a file, I really forget. And I'm sure the audience will agree that whatever you do, and if you're completely involved, you really don't know what the time frame is, who you are. Am I Gopi or someone else? Am I, female or male? I mean, you really forget everything and you're just yourself. And I call it, that's my zone. And when I come, when that zone finishes naturally, I will so recharge, and there's at times even goosebumps that, oh my God, it has been 2 hours and I've been reading this. But at my workplace, I'm really, really so fortunate to come to the subject matter of science, which is going to be in the market, in the society after a few years. For example, I was dealing with Internet of Things from 2012. Blockchain 2014. For that matter, artificial intelligence way back in 2008. So that those are very intricate subjects, and it really thrills you. I'm going to keep in touch with you to know what is coming in future. So it's like one call, अच्छा आप बता दो अब next क्या होने वाला है. So only two group of people know about this is the inventors and yourself. See the beauty. Amazing. That's it. So amazing. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हेतल जी आपके लिए। व्हाट इज योर फॉन्डेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी? यार जीडी, चाइल्डहुड जैसा कुछ था ही नहीं। इट वॉज अ स्ट्रगलिंग टाइम। स्टोरी जैसा इनका है, हमारा है, सबका होता ही है। लेकिन जब छोटे थे तो कुछ बताने जैसा तो था ही नहीं, क्योंकि लाइफ में कुछ नहीं था। माई फादर वॉज डूइंग जॉब, और एक छोटे से जो आपका स्टूडियो है, इस तरह के एक कमरे में हम लोग रहते थे, और वहां से लाइफ शुरुआत कुछ करना है वो पता है। एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने शुरुआत जो की, और मैं सबको भी बताना चाहूंगा कि मैंने जो भी किया उसमें मैं शुरुआत में फेल ही हुआ। एंड पहला सामना फेलियर से होता है तो घर वाले भी परेशान होते हैं, और लाइफ फिर भी काटी है, कुछ ना कुछ करना है। चलते गए कारवां बनता गया, और आज मंजिल आपके सामने है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपने हमेशा से ड्रीम बिग एटीट्यूड रखा था। हाँ, और चाइल्ड के बाद की मैं आपको बात बताऊं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय लाइफ, कि मैंने यहाँ से कन्याकुमारी और उत्तर की तरफ लद्दाख,
ये दोनों एंड जो है इंडिया के, वो दोनों बाय कार ट्रैवल किया है। बहुत ही इंस्पायरिंग टॉक थी, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी थी। 3 पैशनेट इंडिविजुअल, इससे बढ़िया हमें क्या मिल सकता है। बहुत ही मजा आया, बहुत ही उमंग भरी बातें करी हमने, पैशन की स्टोरीज। मुझे तो बहुत ही मजा आया। आप लोगों को कैसा लगा? Oh, amazing, really nice. इस मजे को बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे, लेकिन लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। तो आइए इस फन भरे एंटरटेनमेंट शो को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत ही उत्साह के साथ मैं बताना चाहूंगा हम आ गए हैं अपने सेगमेंट 3 में। और सेगमेंट 3 की अगर हम बात करते हैं तो लेट मी टेल यू, इट हैज अ वेरी यूनिक नेम। द नेम इज लड़खड़ाती जुबान। हाँ? अब लड़खड़ाएगी आप लोगों की जुबान। हम शुरू करेंगे कुछ टंग ट्विस्टर के साथ। तो मैं बारी बारी आप लोगों से एक टंग ट्विस्टर दूंगा, आपको जल्दी जल्दी एटलीस्ट 5 टाइम्स उसे रिपीट करना है। हो गए तैयार? हाँ जी। शुरू किया जाए? Yes. हेतल जी, आपसे शुरू करते हैं। बड़ा ही सिंपल है। दुबे दुबई में डूब गया। दुबे दुबई में डूब गया। 5 बार बोलना है जी, जल्दी जल्दी लेकिन। दुबई दुबई में डूब गया, 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 दुबई दुबई में डूब गया। क्या बात है! डूबे डूबे दुबई को दुबई में डुबा दिया आपने। हाँ, बहुत ही बढ़िया। एक और, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ये थोड़ा याद रखना। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंची ऊंट की, पूछ ऊंट की, ऊंची पूंछ ऊंट की। पूछ ऊंट की या पीठ ऊंट की? जो भी उठाना चाहते हो आप जो उठाओगे, ऊंट ऊंट उठाओगे, ऊंचा। पीठ उठाओगे, पूंछ उठाओगे। ठीक है। ऊंच उठा, पीठ ऊंची, ऊंची ऊंट की पीठ। नहीं नहीं नहीं, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची, और ऊंची, और है ही नहीं। ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंची पूछ ऊंट की। हो गया ना? नहीं, 5 बार हो गए। जल्दी जल्दी। 5 बार में 50% आपको एक्चुअली ये है ना, आप शुरुआत फीमेल से करना चाहिए। नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट बिल्कुल। ऑलवेज। भाई हम ना मर्द को पहला चांस देते हैं, हम जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। हेतल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ। आज कोई बायस की बात नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं गोपी जी? मजा आ रहा है ना? Completely हो जाए फिर से। हाँ, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंची ऊंट ऊंच की की पूंछ ऊंची। पूछ ऊंची। मैं भी भूल गया। मैं भी भूल गया। That's hilarious. चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। चीनू जी, आपके साथ। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता? पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता? पके पेड़ पे पका पपीता या पका पपीता? पका पपीता, पका पपीता। नहीं नहीं, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता? Okay. पके पेड़ पे पका पपीता या पका पपीता? पका पपीता, पका पपीता, ये 2 बार कैसे पका पपीता? आप पपीता क्यों पका रहे हो? पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता? Last. पके पेड़ पे पका पपीता या पका पकी? पका पकी, पका पकी, पक गया। पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो। हो गया। हाँ, ओके, नेक्स्ट। She sold 6 shabby sheared sheep on ship. My daughter would have done a better job than me on this one, but I'll give it a try. Yeah. She sold She sold 6 shabby sheared sheep on ship. 6 shabby. Sheared sheep on ship. She sold shabby 6 seeds on ship. You made me wrong. Okay. She sold 6 shabby sheared sheep on ship. She sold 6 shabby seeds on ship. Okay, continue. नहीं, मजा आ रहा है हमको। She sold 6 shabby 6 shares on ship. Something. Please continue. 5 times. She sold 6 shabby sheared sheep on ship. She sold 6 shabby sheep on 6. Okay, over, done.
अभी मेरा नंबर. Okay, Gopi ji. Betty bought better butter, but the bitter was bitter. So Betty bought the better butter to make the bitter butter better. The toughest one is coming to me. Betty bought a better butter, Betty bought a better butter. was bitter. So bitter bought the bitter butter to bitter better butter. मुझे नहीं पता. I think I was done. Betty bought a butter, but the butter was bitter. So Yes, Betty yes, bought the yes. better butter to make the better butter bitter. बहुत अच्छा है. दो को कंबाइन करके एक ही है ना. जो भी है बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा नहीं, बोलो, है. I बोलो, thought even give it a try. कुछ तो बोल दो. Betty बोल दो, butter बोल दो, कुछ तो कहीं तो निकालो. Betty bought a better butter. So better butter. Got the better butter, bitter bitter. Got a better butter butter. कुछ तो बटर 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 तो कर Butter सकते butter हैं butter. ना. अच्छा चलिए एक सिंपल सा देता हूं मैं. Thanks. नीला रेल लाल रेल, सॉरी नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल. नीली रेल लाल रेल. जल्दी नीली जल्दी. रेल लाल रेल. नीली रेल लाल रेल. नीली रेल लाल रेल. नीली रेल लाल रेल. क्या वाह बात है. वाह. 5 टाइम्स हो गया. क्या बात है, क्या बात है. तो आ चुके हैं हम अब अपने आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट में. इस सेगमेंट का नाम है ऑन फायर विद जीडी. जैसा नाम है वैसा ही हम कुछ करने वाले हैं यहाँ पे. मैं पूछूंगा आपको 10 सवाल. हमारे बीच हैं 3 गेस्ट और विनर होगा 1. तो ये 10 सवाल मैं आपको स्पीड में पूछूंगा और आपको उतने ही स्पीड से आंसर करना होगा. किस से शुरू करें बताइए. मैं बताऊं. चीनी. लेडीज फर्स्ट. हाँ, Do we get a hamper for this? yes, of Oh, we course, do, there is a okay. surprise hamper. Okay. So let me start with you, Chinu, as suggested by हेतल जी. उन्होंने बोला है लेडीज फर्स्ट. शुरू करते हैं चीनू काला जी के साथ. One thing you are addicted to is My work. you can easily give access of mobile password or car keys. Both. One thing if you could change in yourself, what would that be? Nothing at all. So you want to stay as you are. Completely. You are super perfect. Stay as you are. One movie name that suits your life story would be. Can't think of. First thing you notice in men is. Sense of humor? So आपको लोग कॉमिक टाइमिंग के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं. Choose one, wine or vodka. Why? Branded shopping or street shopping. Street shopping and making them look super good. क्या बात है. यही होती है ना कलाकार लोगों की, डिजाइनर लोगों की खास बात. गोलगप्पा और बिरयानी. Anything Golgappa. Your secret Bollywood crush. Man. So आप मतलब बॉलीवुड वालों को भाव ही नहीं देते हैं. भाई मैं हूँ सुपर क्वीन, मेरे सामने कोई नहीं. No king khans, nothing, No. no one at all. No one. Or you are just trying to be the politically correct. No, not at all. No one. Oh. On the scale of 1 to 10, 10 being the highest, how messy you are. 4. 4. So ठीक ठीक. On an average, हाँ. बहुत messy नहीं है आप. Home wise, but work wise, not super perfect. चलिए बहुत ही बढ़िया रहा. बहुत ही उम्दा सवाल और उनके उम्दा जवाब. शुरू करते हैं गोपी जी आपके साथ. हाँ जी. What's one thing about you that makes you proud of yourself? My work. आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं. अब तक तो हम समझ ही गए आप लोग काम से ही प्यार करते हैं. तो पतियों का क्या हाल है भाई? Is उनसे the प्यार second मोहब्बत love. होती है? हाँ जी, हाँ जी. He's थोड़ी बहुत. second love. I like the way she said. भाई याद कर लीजिए, देख लें. अगर आप देख रहे हैं शो को तो यू आर नॉट द फर्स्ट वन, यू आर द सेकेंड लव. आर यू अ नाइट आउल और अर्ली राइजर? Early riser. तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं आप 4 a.m. is also comfortable. और रात में कितने बजे सोते हैं? Depends on schedule, but prefer to sleep by 11, Oh. not more. One thing that pisses you off.
messy things. मतलब आप बड़े डिसिप्लिन हैं, I'm organized. ऑर्गेनाइज, तो घर पे हर चीज ठिकाने पे रहती है. There's a बच्चों- place for everything, and Uh-huh. everything should be in its place. That's क्या our बात, mantra. क्या बात है. Lovely. What is the color of your bed sheet? Very light colors. So you like Like- pastel. Yes. Oh. How many steps did you climb today? Since you are a fitness freak. I really don't count, and I don't believe in those countings. It's how I feel, how better I feel doing energetic movements that defines me. No counting. Okay. How do I look today? Dashing. क्या बात है. So what's your favorite movie? Andaz Apna Apna. हाँ, तो आपको कॉमेडी से बड़ा प्रेम है. So with our longer working hours and little stressed and stretched out hours, we always end up watching comedy. 2 things you do better than your husband are. Managing home, of course, and organizing all documents, whether it's digital or paper. So he's not good at it. I think I'm better. Oh. One thing you are worst at. I would say throwing myself into unknown. So at times I'm a safe person and a person who wants to work in the back end. Hmm. If you could choose your own name, that would be. Gopi, So you love your name. absolutely. क्या बात है. कृष्ण जी, कृष्ण कन्हैया और गोपी. That symbolizes eternal love. So I'm बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन है. और हेतल जी, अब आप दिल थाम के बैठिए, बिकॉज दोनों ने ही बहुत तगड़े जवाब दिए हैं और अब बारी है आपकी. One thing you want to change in Gujarati film industry. Gujarati films should be released across the world. Who is the best actor in the Gujarati industry according to you? Pratik Gandhi today. One word for GD. GD, the great. क्या बात. Gusto to GD. Gusto with GD. That's a good one. Name of your first produced movie would be. Madhav. 2 things you cannot live without. My family and my passion. Name of your first girlfriend. Sorry, can't. Your first crush. Again, मुश्किल में डाल रहे हो. कटरीना कैफ. क्या बात है. तो ये क्रश कब से था? कब देखा आपने कतरीना को पहली बार? जब समझ ही नहीं थी. Aha. You like mountains or beaches? Mountain. Very nice. I think you were also cut to cut. बहुत ही क्लोज है. मुझे लग नहीं रहा कि मैं विनर कैसे अनाउंस करूंगा. On this note, I would like to thank you all for being with me on this first season of Gusto with GD. Thank you so much, guys. मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में कुछ नए चेहरों के साथ में. Thank you. Hi, this is Chinu Kala. It was so much fun being here at this Gusto with GD. It was like just an amazing experience. I met these 2 great personalities. Well, they both are Guinness Book World Record holders. So, all excited to meet them and the energy, the fun, the question answers. It was a lot of fun. Thank you Team GD to having me here. Thanks a ton. Hi, I'm Hetal Thakkar, and it was great experience with this Power Pack show and 2 different personalities like Chinu Kala and Gopi Trivedi. Both of them are very inspiring, and what a great personalities with me with the show. I'm very inspired with these personalities, and it was a great experience. And thank you very much, Team Gusto with GD, for having me here. GD is always near to my heart. He's a good friend, but now the show Gusto with GD is always in my heart. Thank you very much. Hi, this is Gopi Trivedi, and I'm really glad to be part of this amazing show, Gusto with GD. And I got to meet 2 vibrant personalities, Mr. Hetal Thakkar and Ms. Chinu Kala, and it was amazing to share their experiences and journey of life. Thank you, GD, for inviting us to this amazing show, Gusto with GD, and wish you all the best. Thank you.